No problem, Agam. I will evaluate you at last. Don't worry about it. So, who is going to share the screen for practical 3? Ma'am, may I? Yes, Chintan, you can. सब मोह माया है ना चिंतन? Ma'am, it's the last DP. I currently do not have any DP in the team, so. ये तो बहुत टफ पड़ जाएगा आप लोगों को एक्सप्लेन करना. Yes, ma'am, because it's quite big program and it may have some. Okay, for you, all of you, I'll make a change. You can explain this particular problem program. First two, 179 and 149. Explain BFS for water jug problem, and 157 and 136. Explain DFS for water jug problem. So that is also in your practical 5. So you first explain me the algorithm, what is water jug problem, okay, using breadth first search, and 157 and 136 explain depth first search using water jug problem. That is directly હું તમને આમાંથી એકવાર ટ્રાય કરું આ સમજાવવાનું સ્નેહ આપણે ટ્રાય કરીશું. હું સ્ક્રીન શેર કરું કેમ કે મારામાં એક જ પેજમાં બંને આવી જાય છે એટલે ઓકે તમે સ્ક્રીન શેર. ઇઝ ઇટ વિઝિબલ? હા મેમ તો આમાં શું થાય છે કે ફર્સ્ટલી આપણે પેશન્ટનું નામ પૂછ્યું અહીંયા, દેન પેશન્ટને પેલું નામ રીડ કર્યું એન્ડ કેરેક્ટર લીધો વાય કે એન એ રીતના. પછી આપણે ફેક્ટ અહીંયા કર્યું કે પેશન્ટ એન્ડ ડિઝીઝ અને રાઇટ લિસ્ટ આ લિસ્ટ આ બનાવી દીધી બરાબર. પછી કર્યું કે અહીંયા આપણે કન્ડિશન લખે અગર સિમ્ટમ્સ પેશન્ટ ને ફીવર હોય બરાબર, ધેન કયો ક્વેશ્ચન પૂછવો મીન્સ વેરીફાઈ અહીંયા પેશન્ટ કોમા આ ક્વેશ્ચન હેવ એ ફીવર યસ ઓર નો, એ રીતના બધા ક્વેશ્ચન અહીંયા ડિફાઇન કરી દીધા બરાબર. હવે શું કર્યું કે અહીંયા જે વેરીફાઈ કરવાનું જે છે ને વેરીફાઈ પી કોમા એસ, ત્યાં આપણે ક્વેશ્ચન ને વેરીફાઈ કરવાનું. બેઝિકલી ત્યાં પી પેશન્ટ નું નામ જાય અને એસ જે છે ને એ ક્વેશ્ચન છે બરાબર. એટલે અગર યસ જે અગર ક્વેશ્ચન યસ હશે તો ટ્રુ, અગર નો હશે તો ફેલ. અને અહીંયા આસ્ક ક્વેશ્ચનમાં પર્ટિક્યુલરલી શું થાય કે આખું પ્રિન્ટ કઈ રીતના કરવાનું ને કઈ રીતના આગળ જાય, તો એમાં શું થાય પેશન્ટમાં પેશન્ટનું નામ જાય અને અહીંયા ક્વેશ્ચનમાં ક્વેશ્ચનનું નેમ જાય ક્વેશ્ચન જાય બરાબર. એટલે અહીંયા રાઈટ ફર્સ્ટ પેશન્ટનું નામ, ધેન ડુ યુ, અને પછી અહીંયાથી જેમ કે હેવ એ ફીવર વાય ઓર નો. જો અગર હવે રીડ એન્ડમાં શું થાય કે અગર આપણે વાય કે પછી યસ નાખ્યું મીન્સ યસ ઓર વાય એ ટાઈપ કર્યું મીન્સ કે શું કરશે એ એસર્ટ કરશે ક્વેશ્ચન ને યસ, કે પછી એન આના સિવાય કંઈ કર્યું તો શું કરશે ક્વેશ્ચન ને નો, અને એની આગળ ફર્ધર ફેલ થઈ જાય બરાબર. અને ડાયનેમિક યસ કોમા નો એનો મિનિંગ કે ઇટ વિલ બી મીન્સ કેમ કેવું ઇટ ઇઝ ડાયનેમિકલ યસ કે નો, એના મતલબ એ ચેન્જ છે એને કેમ એક્સપ્લેન કરવું એ નહીં ખબર. અને અહીંયા આનો મિનિંગ જે અન્ડુ કર્યું ને રિટ્રેક્ટ યસ અને રિટ્રેક્ટ નો, એનો મિનિંગ કે આખું ટૂંકમાં બધા કમાન્ડ્સ ક્લિયર કરી નાખવા. અને અહીંયા આપણે આખું આ જે છે ને હાઇપોથેસિસ પેશન્ટ કોમા જર્મન મિસેલ્સ ને અગર આ ડિઝીઝ હોય જર્મન મિસેલ તો એના આ સિમ્ટમ્સ છે ફીવર, હેડજા, રનિંગ નોઝ, રેશ, મિનિંગ કે આખા આપણે જે રીતના જે છે ને એ ડિફાઇન કરી દીધા છે. અગર આ સિમ્ટમ્સ હોય તો એનો આ ઇન્જરી હોય, હવે કોમન કોલ્ડ હોય તો પછી આ એના સિમ્ટમ્સ છે એ રીતના. પછી લાસ્ટમાં ક્વેશ્ચન કઈ રીતના પૂછ્યું છે અગર ફર્સ્ટ એઝ અ નેમ પૂછ્યું પેશન્ટનું બરાબર. હવે ડુ યુ હેવ અ ફીવર વાય લખ્યું બરાબર. હું તમને સ્ટોપ કરું છું, મારે બીજાને ઇવેલ્યુએટ કરવા છે. તમારું થઈ ગયું સ્નેહ ક્લિયર હતા ને? યસ ઓકે નાઉ ચિંતન તમે સ્ટાર્ટ કરો. What is your problem? Ma'am, BFS, right? First search. Deep depth first search, ma'am. Breadth
first search. મેમ that particular breadth first search એક એવો algorithm છે મેમ એ સમજાવો કે ડાયરેક્ટ પ્રેક્ટિકલ થ્રુ સમજાવવાનું છે કે એ algorithm શું છે એ સમજાવવાનું છે. તમે આ algorithm સમજાવો, ધૈર્ય practical સમજાવો. ઓકે મેમ. મેમ બ્રેથ ફર્સ્ટ સર્ચ એક અનઇન્ફોર્મ્ડ algorithm છે, એક અનઇન્ફોર્મ્ડ સર્ચ algorithm or you can say blind search algorithm છે. એ algorithmમાં મેમ પર્ટિક્યુલર જે બી સોર્સ રૂટ હોય કે જે ટ્રી રૂટ જે પર્ટિક્યુલર ટ્રી કે ગ્રાફ યુઝ કરતા હો તમે એમાં જે પર્ટિક્યુલર નોડ હોય કે સર્ચ કી કે આ પાથથી આ સોર્સથી આ ડેસ્ટિનેશન સુધી જવું છે તો બ્રેથ ફર્સ્ટ સર્ચમાં એવું હોય છે મેમ કે એ તમારા જેટલા બી પાથ આવતા હોય એ સોર્સ ટુ ડેસ્ટિનેશનમાં એ બધા એક્સપ્લોર કરશે અને બધા ચાઇલ્ડ નોડ્સ છે ને બધા એક્સપ્લોર કરીને વિઝિટ કરીને એનો શોર્ટેસ્ટ પાથ શોધીને તમને આપશે. Breadth first search shortest path આપશે? નો મેમ સોરી બ્રેથ ફર્સ્ટ સર્ચ મેમ એના શોર્ટેસ્ટ પાથ નહીં આપે. ઇટ ઇઝ ઓપ્ટિમલ ઓર આઈ કેન સે ધ લોંગ પાથ આપશે મેમ. એનો શોર્ટેસ્ટ પાથ એ નહીં આપે. એ ડાયરેક્ટલી એ નોડથી કનેક્ટેડ જેટલા બી નોડ્સ હશે સોર્સ ટુ ડેસ્ટિનેશનમાં એ પાથ આપશે. એટલે લોંગ બી પડી શકે છે ક્યારે બી અને કોસ્ટલી બી પડી શકે છે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે મેમ. Okay, Dharya, now you start explaining BFS. Yes, ma'am. Can I share screen? Chalo, Dharya. 149. Are you going to speak? Yes, ma'am. I will share screen. Even if you are not able to explain the code, then it is also fine. You can Ma'am. just explain the algorithm also. Ma'am, Chalo, this explain, is the please. auto-check problem Mhm. using breadth first search. Mhm. Initial condition is 0, 0, and we decide that our final condition is 0, 2 or 2, 0. Mhm. So 0, 0 in first breadth first search, we have two options, 0, 3 or 4, 0. We can fill either first or either second. Either first or either second full. And then in first we have again two option. થોડું જોરથી બોલતો સંભળાઈ નથી. In first option we have again two option 3-0 or 4-3. Either we transfer the second jug to first jug or full our first jug and second jug is remaining as it is. In first jug we have another two possibilities. Either we fill the last jug full and first remaining, या हम अदला बदली कर दे, पहले में से दूसरे में फ्लिप कर दे. इन फर्स्ट वी हैव कंडीशन, फिर थर्ड जग में से हम 1 लीटर इसमें डालते हैं फोर्थ वाले में. ये फुल हो गया तो ये सेकंड वाला 2 बच गया और हम फोर्थ वाले को एम्प्टी कर देंगे. इसलिए हम आंसर तक पहुंच गए. एंड इन सेकंड साइड वी हैव पॉसिबिलिटीज 4-3 और 1-3. 1-3 इसलिए कि इसमें से हम ट्रांसफर करेंगे तो ये मैक्सिमम लिमिट 3 है तो 1-3. इसमें भी दो ऑप्शन है, फिर से पहले जैसे कर दो या फिर 3 वाले को एम्प्टी कर दो. ये थोड़ा लॉन्गेस्ट है. फिर हम ये 1 लीटर उस 3 लीटर वाले में डाल
डाल देते हैं, फिर 4 लीटर वाला फुल कर देते हैं, फिर इसमें से 2 लीटर उसमें डाल देते हैं, ये फुल हो गया और ये 2 हो गया। ये BFS ऐसे नहीं वर्क करेगा ना। BFS का मैं एक्सप्लेन करती हूँ, अगर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ पे एट फर्स्ट कंडीशन 0 होती है, उसके ऊपर 2 रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, 30 एंड 40। उसके ऊपर 30 पे जितने भी रूल्स एप्लीकेबल होते हैं वो सारे अप्लाई करते हैं, और 40 पे जितने अप्लाई होते हैं वो सारे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट लेवल हुआ, नेक्स्ट लेवल पे जितने भी नोड्स है सबको एक्सप्लोर करना है, उसको बोलते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। चिराग, नाउ यू आर योर टर्न। आप अपना माइक ऑन करके डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम एक्सप्लेन करो। चिराग स्टार्ट प्लीज। हेलो मैम, मैं हाँ, आप ऑडिबल हो, बोलो। हाँ मैम, ब्रेड्स फर्स्ट सर्च में हम एक नोड से दूसरे नोड तक जाने का रूट रास्ता ढूंढते हैं, जो भी सबसे अच्छा रास्ता, मतलब जो भी रास्ता उसको ऑप्टिमाइजर लगता है वो रास्ता वो चुनता है। एक एग्जांपल लाइक we need to go to S node to G node, so he goes they can see all the optimizer path and find that route. BFS के हम there you can three stage होते हैं, I think 3 स्टेज फॉर 3 स्टेटस में हो सकता है, आई थिंक। पहले चेक करते हैं दरेक नोड की यहाँ पे है कि नहीं, उसके बाद चेक करने के बाद वो पाथ को डिसाइड करता है, पर वो सबसे स्लोएस्ट पाथ होता है। BFS को यूज करने से हमें मोस्टली स्लो काम करने को मिलता है। ओके, आप लोग हैंड रेज करना बंद कर दो तो मैं प्रैक्टिकल 4 वाले को ऐड कर रहा हूँ। हेलो मैडम। हम्म, हाँ मैडम, आपने 7.3 प्रैक्टिकल लैब में नहीं किया है, करवाया है, कौन सा है? ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, और हमारा 7.3 सिमुलेटेड एनालिंग एक्सप्लेन कर देना वो लेक्चर में। ओके। चलो प्रैक्टिकल 4 वाले हैंड रेज करो। कौन प्रेजेंट करेगा? साक्षी, आप कर रहे हो? Yes, ma'am, I do. ठीक है। Ma'am, is my screen visible? चलो, Yes, ma'am. So first, like we need to create a family relation tree. So एक मिनट, yes, मैं अपना व्हाइट बोर्ड प्रेजेंट कर रही हूँ। इस प्रैक्टिकल के लिए मुझे एक आपको चीज बतानी है, ठीक है, जो शायद से उस टाइम में मैं बताना भूल गई हूँ।
यहाँ पे क्या होता है, एंसेस्टर जो होता है ना, तो मैं ऐसे स्मॉल में लिखती हूँ, आप समझ जाओ। फिर होता है पेरेंट और फिर होता है चाइल्ड। बट कई बार क्या होता है कि एंसेस्टर आप उसको भी कहते हैं, पेरेंट का पेरेंट, उसको भी हमें एंसेस्टर बोलते हैं। अब चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन तो वन वे है, ओके, जस्ट इमीडिएट है, यानी कि पेरेंट और चाइल्ड का तो जस्ट इमीडिएट है। बट व्हाट अबाउट दिस रिलेशन, ये इमीडिएट नहीं है, कि वहां पे क्या है कि इस चाइल्ड के लिए ये पेरेंट जो है वो है इनडायरेक्ट। बट हाँ, कैसे इनडायरेक्ट के, जैसे चाइल्ड का पेरेंट से रिलेशन और इस पेरेंट का ये पेरेंट रिलेशन, तो इसीलिए हमको हमारे प्रोग्राम में वो जो रिकर्जन दिखता है ना, फर्स्ट, अब आप प्रोग्राम शेयर करो तो मैं समझाती हूँ। ये आपको समझ में आया कि ये क्या हो रहा है एक्चुअली? यहाँ पे हमको किसी को एंसेस्टर बोलना हो, जैसे कि चाइल्ड है तो पेरेंट भी उसका एंसेस्टर है और पेरेंट का पेरेंट उसका भी पेरेंट उसका एंसेस्टर होता है। तो ये तो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है जो हम लोग सिंगल रूल से डिफाइन कर सकते हैं। पर इसके लिए कैसे करेंगे इनडायरेक्ट एंसेस्टर रिलेशनशिप के लिए? क्योंकि ये पेरेंट भी तो उसका एंसेस्टर है और ये पेरेंट भी उसका एंसेस्टर, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं रिकर्जन। वो अब आप कोड शेयर करो। Yes, ma'am, I'll share. मैम एक्चुअली आई हैवंट डन फॉर एंसेस्टर, क्योंकि इसमें सिर्फ ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर का था ना, दिखाओ तो। एम यही है। हाँ, वो रिलेशन। Yes, ma'am. So first we define the male, female, and parents. मैम मेरे में एंसेस्टर है। Child and तो आप second one एंसेस्टर का दिखा देना ना, निखिल नील कुमार सर। ओके मैम। Yes. So and then we have I have defined also the, like, A is married to B, so we have defined that relation, and then it starts from father. So like first one is child and second one is dad. So if this condition will be true if the like dad is male and it is the, like he is the parent of the child. And same is the case with mother, like if mom is the female and she is the parent of the child, then this condition will be true for father and mother. Then for grandfather, we need to check that he is male, then he is parent of his parent, like यही कंडीशन मैं समझा रही थी आपको कि देखो ग्रैंडफादर में क्या होता है कि फर्स्ट एक मेल होना चाहिए, फिर सेकंड पेरेंट वाली कंडीशन, ये इमीडिएट पेरेंट के लिए, और ये जो आपको तीसरी पेरेंट वाली कंडीशन दिख रही है ना, वो इसलिए क्योंकि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है इसके लिए। ओके साक्षी, अब नील को एक्सप्लेन करने दो। नील आप शेयर करके एंसेस्टर वाला एक्सप्लेन करो, बाकी ब्रदर सिस्टर का एक्सप्लेन करेंगे नूपुर और दृष्टि। ओके मैम। यस मैम, माय स्क्रीन इज विजिबल। ये क्या कोलैज बना के रखा ना मैम, वो तो करवा रहे हो क्या? इमेज, करवा रहे हो? हाँ वो तो इमेज सर्च सिस्टम बना रहा है उसमें। कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हो मैम? नियरेस्ट नेबर सर्च फॉर द बिलियंस ऑफ इमेज। के नियरेस्ट नेबर्स। यस मैम। पर के नियरेस्ट नेबर सर्च का एक क्वेश्चन है मेरा, चलो ठीक है, आज थोड़ी नॉलेज शेयरिंग हो जाएगी। Here we know that we have a curse of dimensionality. कि जितने ज़्यादा dimensions होंगे के नियरेस्ट सर्च में, उतना हमारा एल्गोरिथम वर्स परफॉर्म करेगा। पर ये चीज हम लोग के नियरेस्ट नेबर्स में ऑब्जर्व नहीं करते, ऐसा क्यों? इमेज में तो थाउजेंड्स डायमेंशंस होता है, तब क्यों इसका परफॉर्मेंस अच्छा आ जाता है? क्यों क्लासिफाई कर पाता है? मैम ब्रूट फोर्स और ये के नियरेस्ट नेबर, ये दोनों यूज किए हैं, बट नहीं,
आंसर दो, मैथमेटिकल पूछा चीज, एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करने से चिंता मत करो, मैं नेक्स्ट ईयर आपको मशीन लर्निंग नहीं लेने आऊंगी। कुछ नहीं मैम जनरली रिवर्स इमेज सर्च इंजन बना रहा था, तो उसमें ई कॉमर्स साइट्स के लिए यूज किया वो था। मुझे सब पता है, इसका नहीं पूछा मैंने, तो बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन, ये तो पता है एक माइनर डिफरेंस होता है, ये जस्ट बोल दिया कि वो चतुर और भैंसों के बीच का डिफरेंस। कोई पूछेगा इंटरव्यू में कि इमेज के लिए नियरेस्ट नेबर सक्सेसफुल कैसे क्लासिफाई कर पाते, क्योंकि उसका तो मैम वैसे कंसेप्ट ऑफ डिमेंशनलिटी, अभी तो ऐसा ही लर्न किया है कि जो भी हम इमेज इनपुट्स में देते हैं उसके वो फीचर्स रीड करता है और फिर फीचर्स को कंपेयर करके इतने सारे उसको एक वो रीडिंग वहीं पे तो वो फेल होता है। मैम अब आप कितने फीचर्स वाला डेटा सेट डालो, इमेज के अलावा कोई भी इतने फीचर्स वाला डेटा सेट डालो के नियरेस्ट नेबर फेल हो जाए, तो इमेज के लिए क्यों सक्सेसफुल जाता? મેમ તમે એ જ પૂછો ને આ પ્રિડિક્ટ કઈ રીતના કર્યું? એ ભાઈ એ મને ખ્યાલ છે ને પ્રિડિક્ટ કઈ રીતના કરવાનું. नियरेस्ट नेबर માં તો એક એક પિક્સેલ ની નિયરેસ્ટ જે वो હોય ને थियरी नहीं पढ़ी, वो थियरी नहीं पढ़ी, थियरी पढ़ी नहीं. For you to go start with the book this machine learning by Tom Mitchell. ओके मैम. गुरु है हमारे, पढ़ा करो उनकी बुक. मैम ये तो ओरियली पे आर्टिकल्स था उस पे देख वो के मुझे पता है, वहीं से आए, वही सारे काम करने में जिंदगी लाइफ बर्बाद कर डायरेक्ट इस पे कहाँ कूदने की जरूरत है अभी इतनी जल्दी. एक एल्गोरिथम्स कैसे काम करते वो नहीं देखा था, बट ब्रूट फोर्स से ये होता है कि हम पहले से ही सारे फीचर्स को एक पोजीशन में सेट कर देते हैं और फिर उसका नियरेस्ट नेबर कौन सा है सिमिलर टाइप वाला उससे देख के. अभी तो उतना सारा नॉलेज गेन नहीं किया होगा ना मैम. कंटिन्यू करो इसमें जो एक्सप्लेन करना है एंसेस्टर वाला. बस वही था मैम जो आपने बताया. एंसेस्टर वाले में पहले मेल फीमेल और पेरेंट्स का डाल दिया और जो एंसेस्टर एक्स देंगे, एंसेस्टर एक्स है तो एन इंडियन से तो एक्स के लिए भी पॉसिबल है और वाई के लिए पॉसिबल, तो दोनों पे एक्स ही रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर रिलेशंस का कंडीशन दे दिया ए ऑफ एक्स और एंड एंसेस्टर ऑफ ए ऑफ वाई. दोनों मीन्स के ऊपर भी एंसेस्टर पॉसिबल है और नीचे भी पेरेंट के भी पेरेंट है, पेरेंट के ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के ग्रैंड सन्स, दोनों के लिए एंसेस्टर पॉसिबल है. तो सिर्फ यही, बाकी तो साक्षी ने बोला वही है. चलो दूसरे सिबलिंग वाला और ब्रदर सिस्टर वाला बताओ. चलो चलो नुपुर और दृष्टि सिबलिंग और ब्रदर वाला रिलेशन एक्सप्लेन. यस मैम. स्क्रीन शेयर करो. हाँ करो. ओके मैम. मैम ये ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन है. तो मैम उसमें ये होना चाहिए, सपोज अगर सिस्टर है तो, एक मिनट मैम, अगर सिस्टर है तो वो फीमेल होना चाहिए और उसके पेरेंट्स चेक करवाएंगे, मतलब
मतलब अगर पेरेंट्स एक्स मतलब फीमेल पेरेंट और मेल पेरेंट सेम होंगे तो वो सिस्टर होगा, मतलब दोनों सिस्टर होंगे। और ब्रदर के साथ भी सेम, मतलब वो मेल होना चाहिए और पेरेंट चेक करवाएंगे, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट अगर इक्वल मतलब सेम हुए तो वो ब्रदर होंगे। हाँ मैम, यही थ्योरी है कि बस पेरेंट चेक कराएंगे ताकि पता चले कि पेरेंट सेम है कि नहीं। और पेरेंट वाला रूल दिखाओ तो कैसा है? मैम एक मिनट, मैम यहाँ पेरेंट पहले से ही डिस्क्राइब करके दिए हैं कि कौन कौन पेरेंट है, और मतलब पहले वो मेल फीमेल किया है, फिर उससे पेरेंट का रिलेशन बनाया और वो डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ किया है, मतलब ये ब्रदर सिस्टर वाले में। ओके, इसलिए यहाँ पे 2 बार पेरेंट का चेक करवाना पड़ता है क्योंकि एक एक्स मेल के लिए होता है और दूसरा हाँ, वाई और दूसरा फीमेल। हाँ फीमेल के लिए। हाँ। नहीं, एक एक्स है तो एक्स के पेरेंट के लिए चेक करवा रही है और एक्स इज इक्वल्स टू वाई होना चाहिए, वैसा है हाँ यहाँ। हाँ यानी मैम, कि दोनों के पेरेंट एक होने चाहिए। हाँ हाँ ओके, चलो प्रैक्टिकल 5 वाले हैंड रेज करें। मैम हम्म, ये गूगल और पिंटरेस्ट में जो रिवर्स इमेज सर्च वर्क करता है इतने सारे स्केल पे, तो उस पे सर्वर्स में रैम और जो वो कंप्यूट यूज होता है वो तो इतना सारा ज्यादा होना चाहिए कि उसके वो उसका कौन से एल्गोरिथम से। ये है, मैं समझाती हूँ। इमेज है ना, ओके, वो पूरे पिक्सेल्स कंसीडर में नहीं करते। वो जो फीचर्स होते हैं ना पूरे इमेज के, वो एट अ टाइम वो 1000 फीचर्स को कंसीडर नहीं करते, वो 3x3 फीचर्स को ही कंसीडर। तो आप जिस पिक्सल के ऊपर मैचिंग करवा रहे होते ना, क्लासिफाई करवा रहे होते ना के नियरेस्ट नेबर में, तो हमको ऐसा लग रहा है कि वो 1000 फीचर्स पे वर्क कर रहा है, पर एट द टाइम वो 3x3 या फिर 5x5 या 7x7 विंडो जो होती है ना, उसके ऊपर ही वर्क कर रहा है। तो इमेज में वो सारे फीचर्स कंसिडर ही नहीं करते, इसीलिए के नियरेस्ट नेबर सक्सेसफुल जाता है। वो 1000 फीचर्स को डिसाइड ही नहीं करता। आप अगर एक पिक्सल पकड़ रहे हो ना, तो उसको सेंटर पिक्सल समझ के उसके आजू बाजू एक विंडो बना, और वो विंडो की वजह से वो इतना अच्छे से क्लासिफाई कर, वहां पे उसको जितने भी डायमेंशन है उसका कर्स ऑफ डिमेंशनलिटी इफेक्ट नहीं करता, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि वो 1000 पिक्सल्स नहीं कंसिडर करता, 1000 फीचर्स कंसिडर ही नहीं करता इमेज। इवन आप 1000x1000 इमेज मैट्रिक्स डाल रहे हो, कंसिडर ही नहीं करेगा, उसको जिस पिक्सल क्लासिफाई करना है बाजू वाली विंडो कंसिडर करेगा। तो उसको इतनी हायर एक्यूरेसीज किस तरह से मिल सकती है, क्योंकि हमारा नियरेस्ट लेवल में इसलिए आती है क्योंकि वो क्या करता है कि आपकी इमेज में जो पिक्सेल्स होते हैं ना, उसकी वैल्यू बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होती है। ये अगर आप इस टाइम पे मेरे साथ इमेज प्रोसेसिंग पढ़ रहे होते हो ना, जो पिछले बार तो इमेज प्रोसेसिंग ऑप्शन में था लेकिन इस बार नहीं है, तो इस बार उसकी जगह पे MAD है। तो इस टाइम तक हम लोग इमेज प्रोसेसिंग में ये चीज डिस्कस कर चुके होते, क्योंकि वहां पे हम लोग कन्वोल्यूशन यूज करते हैं। ओके मैम, बिकॉज ये इतने बड़े स्केल पे वर्क करता है और स्पीड भी स्केल पे वर्क करते हैं नहीं इतने बड़े, वो 3x3 या 5x5 या 7x7 मैट्रिक्स पे वर्क करते हैं, वो इतने ज्यादा फीचर्स कंसिडर ही नहीं। वो एल्गोरिथम की लाइब्रेरी फाइल में जाके चेक करना पड़े आपको कि कितना फीचर्स एक पिक्सल के कितने नेबर्स कंसिडर करता है। वो सारे नेबर्स इनटू द कंसिडरेशन लेता ही नहीं है। और प्लस इमेज मैट्रिक्स है, तो वो 3x3 या 5x5 नियरेस्ट नेबर्स में से ही करें, भले 1000x1000 इनपुट दे, लेकिन वो एक सेंटर पिक्सल जो होगा वो नियरेस्ट 3x3 या 5x5 में ही वर्क, इसलिए उसके ऊपर कर्स ऑफ डिमेंशनलिटी वर्क नहीं करता। और यही चीज अगर आप नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा डालते हैं ना विद 1000 फीचर्स, तो के नियरेस्ट नेबर घटिया तरीके से परफॉर्म करके फेल हो जाता है। थोड़ा मैथमेटिक्स है, वो बुक में
पता चलेगा। ठीक है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ फॉर एवरीबडीज नॉलेज, नॉट फॉर हिज, एक सिंपल मैथमेटिक्स चीज होती है। जब आपके डायमेंशंस और फीचर्स बढ़ते हैं ना, तो क्या होता है कि सपोज आपको ओ और एक्स आइडेंटिफाई करना होता है, पर उस टाइम पे आपके सारे जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं ना, वो एजेस पे जाके बैठ जाते हैं। अब मेरा डेटा पॉइंट सपोज यहाँ पे है, तो उसको ये डेटा पॉइंट तो मिलेगा ही नहीं, ये डेटा पॉइंट भी उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या होता है कि n डिमेंशंस में चला जाता है, ये सारे जाके h पे जाके बैठ जाते। जब आपके डायमेंशन ज्यादा बढ़ते हैं ना k नियरेस्ट नेबर में, तो सारे डेटा पॉइंट्स आपको यहाँ भी मिलेंगे, फेल हो जाता है। इमेज में तो क्या है, 1000 क्रॉस 1000 है, तो एक पिक्सल यहाँ से है, पर उसके इतना पोर्शन जो है ना, वो सिर्फ इतना ही कंसिडर, फिर भले ना आपके दूसरे डेटा पॉइंट यहाँ पे एज पे जाके बैठे, उसको मतलब ही नहीं है। पर ये स्ट्रक्चर डेटा में तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ पे वो नहीं चीज होती इसके लिए। ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना, तैयार होना, कई बार इंटरव्यू में पूछते हैं। तीन ही लोग हैं प्रैक्टिकल 5 में, और कौन है प्रैक्टिकल 5 में? चलो शेयर करो प्रैक्टिकल 5। निहाल। वैसे यस मैम। मैम स्क्रीन इज विजिबल? हाँ, तो मैम यहाँ से समझा सकता हूँ? हेलो मैम, यहाँ से समझा सकता हूँ मैं बुक में से? ओके मैम, तो लिस्ट मतलब वो एंड एज यू कैन, आप यहाँ से देख सकते हो, लिस्ट को हम ऐसे एंड क्लॉसेस से हम डिफाइन कर सकते हैं। प्रोलॉग में लिस्ट एम्प्टी भी हो सकती है और नॉन एम्प्टी भी हो सकती है। और इसमें यहाँ पर जैसे क्या एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ पर जॉन है, वो उसका हेड पार्ट है, और उसके बाद में जो भी होता है उसे हम टेल पार्ट कहते हैं, और उसको सेपरेट करने का काम वर्टिकल बार करता है। वर्टिकल बार की मदद से हम चाहे तो हम किसी लिस्ट में आइटम हम ऐड भी कर सकते हैं, और ऐड करना हो, शो करना हो, हम सब कर सकते हैं मैम। कॉन्स नोटेशन क्या होता है लिस्ट में? कौन सा मैम? कॉन्स नोटेशन। कॉन्स नोटेशन? CONS नोटेशन। वर्टिकल बार को मैम, जो ज्वाइन करता है टुगेदर सबको, हेड और टेल को। ओके रुक जाओ, मैं देख नहीं। एशा अब आप एक्सप्लेन करो। ओके मैम। मेरे लिए इतना ही काफी था। आपको आता है कॉन्स नोटेशन क्या है? मैम एक्चुअली मैं मोबाइल से ज्वाइन हूँ, तो निहार कैन यू प्लीज शेयर द स्क्रीन? ओके मैम कॉन्स नोटेशन में बताओ। हाँ, पार्ट आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ मैम, कॉन्स नोटेशन मतलब एक मेमोरी ऑब्जेक्ट विच होल्ड्स टू वैल्यू, मैम दो वैल्यू होल्ड करती है वो कंस्ट्रक्टर होता है कॉन्स नोटेशन। मैम कॉन्स नोटेशन यहाँ पे लिखा है, देखो निहार स्क्रॉल करो तो थोड़ा, तो इनको कॉन्स नोटेशन का पढ़ने में आएगा। ये रहा मैम, माउस है ना वहाँ। पढ़ो तो देखो पार्ट कॉन्स नोटेशन के बारे में क्या लिखा है। मैम एक मिनट, जूम करना। जूम करो तो ओके
list is represented by part and sequence one or more element. मैम वही तो बोला मैंने, एक पार्ट में वन और मोर लिस्ट जो होती है वो। हेलो हाँ, सपोज देखो आगे एलिमेंट्स और पीछे आपको लिस्ट में एलिमेंट्स ऐड करने हैं। हाँ तो एलिमेंट आप ओके कॉन्स नोटेशन यूज करके कर सकते हो, वो हाँ, एक वो कंस्ट्रक्टर है। हाँ वो बेकार है क्या मैम के एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। चलो अब ईशा समझाएंगे अपेंड कैसे करना है, और राइट ऑल वाला जो हमारा प्रेडिकेट था वो ईशा समझाएंगे। यस मैम। निहा वो राइट ऑल वाला प्रेडिकेट ओपन करो तो। ये बुक में बुक में है राइट और नीचे स्क्रॉल करो। ये स्क्रॉल करो पेज डाउन करो। मेंबर मैंने यूनिवर्स इसमें से एग्जांपल लिया। हाँ यस ये मैम। ये मैम बिल्डिंग प्रेडिकेट नहीं है इसके लिए नहीं दिखेगा, खुद से लिखना था टाइप होगा। मेरा प्रैक्टिकल प्रेजेंट करूँ मैम। Yes ma'am, this one is append the list. तो कौन सा एक मिनट ईशा वो प्रैक्टिकल फाइल ओपन कर रहा है, उसमें दिया है राइट ऑल। ओके 5.2 प्रैक्टिकल है। 5.2 मैम। यस ये मैम राइट लिस्ट तो राइट ऑल वाला करवाया था वो कहाँ गया? यस मैम, राइट ऑल वाला करवाया था आपने। कोई बात पार्ट नहीं, को कैसे समझा दो राइट लिस्ट और मेंबरशिप है नहीं। अरे मेरा लैपटॉप कल ही आया, मैं फॉर्मेट लगाया था, फॉर्मेट हुआ था, मदरबोर्ड में प्रॉब्लम थी तो आ मैम गया। मैं ऐसे ही आपको एक्सप्लेन कर दूं। कर दो मान। ओके मैम, सो राइट ऑल से हम पूरी लिस्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं, लाइक एम्प्टी लिस्ट और कोई और लिस्ट हो उसको मर्ज करके हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट ऑफ ऑल ब्रैकेट में लिस्ट। और ये मेंबरशिप वाला किसके लिए होता है? मेंबरशिप यस मैम, तो उसमें हम ऐसा चेक करवा सकते हैं कि फर्स्टली वी एंटर द एलिमेंट वी वांट टू चेक एंड देन वो लिस्ट लिखेगा और वो चेक करेगा कि वो एलिमेंट उस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। और also we can check the index of each element, like a member of x कोमा हम लिस्ट लिखेंगे तो वो लिस्ट में जो भी मेंबर होंगे वो इंडेक्स वाइज प्रिंट हो गए, लाइक ए बी सी हो गए तो x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी और सी ऐसे। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो मैम।
Just a second. 7.1, they please raise their hands. और बाकी सब लोग अपना हाथ रेज करना बंद करें. इरफान एंड अमरूद, आप लोग एक्सप्लेन करोगे दिस पर्टिकुलर थिंग. BFS एंड आयुषी एंड आयुष, आप लोग एक्सप्लेन करोगे DFS. ओके, सो इट विल बी रिविजन फॉर ऑल ऑफ अस इन द लैब जो लोग सुन रहे हैं. तो स्टार्ट कर दो. प्रोग्राम एक्सप्लेन करोगे ना आप लोग. कोड ओपन करके start presenting. Irfan. ओके मैम, श्योर मैम. उसको मतलब कोड एडिटर में करूँ या फिर इसमें चलेगा? यही एक्सप्लेन करो ना बस. हाँ, और कैन आई यूज द व्हाइट बोर्ड इन बिटवीन इफ आई वांट टू एक्सप्लेन समथिंग? If you then permission I can use it. Yeah, I have the whiteboard over here, so I will just use that. So basically, breadth first search is the uninformed search, or you can say the blind search, in which there is no heuristic functions, and it will check for all the possibilities, branch wise and level wise. In the water jug problem, what is the problem statement is we have two vessels of different or maybe equal size. We have to measure some amount of water using them, and there are no such markings on that vessels. So we can either fill completely, or we can just transfer into one another. So yeah, basically if we have, let's say, two jugs. Okay, pardon my drawing. So if we have the two jugs, let's say for 3 and 7, and we have to find, let's say we have to find the 4. So what we have to do is either we can fill both the jugs, or what we can do is transfer the water from one jug to another. So first of all, let me just quickly draw the tree of search space, whatever you can say. So first of all, we have 0, 0 water in both the vessels. Just a minute. 0, 0. Now we can divide this, or we can do the actions which we have, like fill the first jug, so it will be 0, 0. Or we can do fill the second jug, it will be 0 and 7. Just a second. Yeah, and other thing which we can do is not currently we can do only 2 steps. Either we can fill first, either we can second, or we can fill both, but that's I think useless, because we have to transfer or we have to empty in another step, so it's kind of wasteful move. So these are the 3 possible steps currently, and we can also make it the vessels empty, the current state, so we do not need to consider that step again. Now in the breadth first search we will go level wise, so we are currently at this level, and we will go to the next level and explore all the possibilities. We cannot ignore any possibility. We have to explore one and all possibilities of the next level. So first of all, we will start with this, and we will create the next possibilities of this. We will we will not here. We will check for 0 and 7, and then we will go for 3 and 7, and then we will move to the another level. So this will be the implementation of BFS. So let's just go through the code. We will need a queue. Why we will need a queue? Because we have to store the other level, what you can say, nodes also.
So we will use a queue. First of all, I have imported the DQ from the collections object. I have created an array or a map, not an array, it is a map dictionary, what you can say in Python. So it is a visited, it will state, it will store the states that are already visited. So we do not have to iterate over it again and again. And this is a Boolean variable that we will see in the later discussion. Now I have stored the answer in an array form. That answer will be the path from starting to the end. What will be the path of finding the solution? Currently we have to make 4 letters out of these 2 jugs. So the answer to get the 4 will be stored in this array. I initialize one DQ and appended 0 because it is the initial state. Now what we will do is while the length of q is greater than 0, while there is some element in the queue, what we will do is pop left means we will delete the left element and assign it to the u. So as u will be currently 0. 0 0 tuple will be given to the u. Now we will check if it is already visited, it is in visited, then we will directly continue. We do not need to process it over and over. So we will directly move to the next statement. Now we will check if the first element of the tuple is greater than the capacity of first jug, or the second element is greater than capacity of second jug, or both are less than 0. Then also we can say that we do not need to do anything. We will just keep this move, and we will else if both of these are not true, then we will do this thing. We will append this into our answer and we will mark that as visited. Now if our any of the jug is equal to the target value, then we will do its solvable equal to true. Now for if the first is answer, then we will append the first. If the second one is answer, then we will append the second. And yeah, we will simply print it out using the print statement. Yeah, so I think that's all from the code, or this is some transferring transferring mechanism from one jug to another. We can do with the conditions that we have in the water jug problem, that we can transfer the water from one to another also. So this is the logic for that. And if it's not solvable, we will directly print out it's not solvable, and yeah, we have to call that function. So in this function I have 18, 11 and 4. Basically first we have 0 0, we filled it with 11, then we go to the 18th, then 18th 11, then we transferred 11 to the first jug, and then we filled the second with 7, 7 plus 11, and yeah, it goes on. We have to find the 4th, so yeah, it will go on for 3-4 more steps, and then we will have the answer. Hello ma'am. ओके डन, पूरा डिटेल में समझाया है। अब अमृत, आयुषी और आयुष, आपको बोलना है कुछ बीएफएस डीएफएस के बारे में। तो कैंप और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बोल दो। आप एडवांटेजेस बोलो अमृत बीएफएस के। डीएफएस या बीएफएस? बीएफएस उसके एडवांटेजेस। ओके मैम, सो बीएफएस जो है वो क्या कह सकते हैं हम, वो ब्रांच वाइज, मतलब अगर आप स्टार्ट करते हैं ए से, देन वी गो द नोड गोज टू बी एंड नोड गोज टू सी, मींस इट uses the branch wise and level wise Ma'am, can I answer? नहीं, आपने बहुत बोल दिया। आयुषी, Ma'am, I know about BFS. उसका बोलो। Yes, ma'am. BFS is also known as depth first search. Sometimes it turns out to be an incomplete algorithm. So this solution generated by depth first search may be incomplete, as this algorithm goes on the deepest possible point in the first path. So the algorithm will turn into
experiment infinitely and will never give any correct solution. So for this water jug problem, DFS can't be used from my side. Ma'am, BFS consumes more memory, means it is its disadvantage. ओके आयुष आपको डीएफएस के एडवांटेजेस बोलने हैं। डीएफएस के मैम डीएफएस में जो नोड होता है ना, जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो नोड के सिर्फ एक ही साइड परफॉर्म होता है। मतलब एक नोड से अगर आगे नहीं जा सकते तो वो नोड को कैंसिल करके दूसरे नोड पर बैक ट्रैकिंग करना शुरू कर देते हैं। वो बेस्ट फर्स्ट सर्च बोल रहे हो, डेप्थ फर्स्ट सर्च नहीं मैम। डीएफएस मैम नहीं, उसका चांस आप वही बोलेंगे मैम। बीएफएस में वो शॉर्टेस्ट पाथ वो सिलेक्ट करता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेप्थ फर्स्ट सर्च देखो, वाई वाला सीन मुझे तो अभी से दिख रहा है आप लोगों का। ये वाइवा पूछेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च, इतना सिंपल क्वेश्चन। क्या होता है, एक नोड होता है, उसके ऊपर एक ही रूल अप्लाई करना होता है, सारे नहीं करने होते। वो रहता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। एडवांटेजेस क्या, कंज्यूम लेस मेमोरी स्पेस। डिसएडवांटेज so not guarantees you the solution. वो ट्रैप हो सकता है, मतलब सर्चिंग यूजलेस पाथ, बहुत सारे पाथ यूजलेस वो सर्च कर सकता है। ठीक है, ओके। अब सोच लो कितना प्रिपेयर करना है आप लोगों को। अब बाकी सब लोगों का क्या करूंगी, इवैल्यूएशन के लिए जो आज तो 3:30 हो गए। अब आपका मेरा कोई दूसरा लैब भी नहीं आता ना। ओके, आपका नेक्स्ट लैब में पहले प्रैक्टिकल करवाऊंगी और फिर इवैल्यूएशन करूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट मंडे अराउंड 2:45 आपका इवैल्यूएशन स्टार्ट करूंगी। अंटिल 2:45 मैं लैब का जो रेगुलर है वो स्टार्ट करूंगी, ठीक है। और आपके प्रेजेंटेशंस है वो मैं सैटरडे को अरेंज करूंगी, ताकि मुझे मेरा लैब का टाइम उसमें कंज्यूम ना हो, ठीक है। तो वेट फॉर अ व्हाइल, जब मैं आपका अटेंडेंस लूँ तब तक। मैम प्रेजेंटेशन इस वीक या फिर नेक्स्ट वाला? नहीं, ये वीक से स्टार्ट करें। यही वीक से, ओके। पर ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक जैसा ही हो गया ना, सैटरडे को स्टार्ट करेंगे तो आपके पास तो ये वीक पूरा होगा ना अभी। यस मैम। Okay, done. So all of you, if you want to leave the lab, you can leave, and also I am terminating the meeting. आगम, आपका भी नेक्स्ट टाइम इवैल्यूएशन होगा। मैम प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Always welcome students. हेलो मैम।